Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, I am going to start organic chemistry. As you know that organic chemistry, the branch of chemistry in which we study are those naturally or artificially synthesized compounds which mostly contain carbon, hydrogen and some oxygen, sulfur, nitrogen also. Student, this portion of your chapter means you can say that organic chemistry portion carry near about 23 marks. We have to study first chapter haloalkane haloarenes, then alcohol, ether, phenol, then aldehyde ketone carboxylic, then nitrogen containing compound. After that there are three other chapters. One is the biomolecules, next polymer, and next one is the chemistry in everyday life. It means there are 8 chapters, 7 chapter you can say. First is the haloalkane haloarenes, alcohol, phenol, ether, aldehyde ketone carboxylic. Next is the nitrogen containing compound, then polymer, biomolecules and chemistry in everyday life. Means 7 chapter you have to study, and nearly 23 to 25 marks carry all these chapters together. And student, as you know that about the organic chemistry, it is very tough, it is very difficult to study, as you know that. But from my point of view, if you start from haloalkanes, studying from haloalkanes to the nitrogen containing compound, you will see that every chapter is interconnected. Every chapter is interconnected. You will see that the preparation of first chapter means most of the reaction in preparation of haloalkanes and haloarenes. You will see the properties of alcohol, ether, phenol, and the property of alcohol, haloalkanes, haloarenes, if you see, that will be the preparation of alcohol, ether, phenol. Means how these chapters are interconnected, you will see. Then you will find that if you prepare one chapter, then you can prepare all chapters, because similarly all chapters are interconnected. And if you think that you have to do Rattamar study, this is not here. यहाँ ऐसा नहीं है. Only you have to understand in organic chemistry what you have to remember. There are some named reaction which are mostly asked. If you collect all these named reaction, and you will find in your organic chemistry in 12th class, I think more than 15, not more than 15 named reaction, 15 से ज़्यादा नहीं है. And there are some distinguished tests, okay, which you do in the lab. जो हम कुछ लैब में करते हैं, कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं और कुछ जो है मेन रिएजेंट्स हैं.
जिनके एक पर्टिकुलर वर्क होते हैं, वही मेन रिएजेंट्स के वर्क के बेस पे रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो अगर पूरे इन जो 4 चैप्टर्स के हमने नाम लिए, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर को अगर छोड़ दिया जाए इन 3 चैप्टर को, तो बाकी के 4 चैप्टर में हमने जो बताया, हमें 3 पॉइंट्स को याद रखना है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? हमें नेम्ड रिएक्शन एक जगह कलेक्ट कर ले, और एक जगह पे जो है कि पूरा डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत होगा, 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग जो है कि मेन रिएजेंट के वर्क नोट कर लें, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं? एक क्वेश्चन तो कन्वर्जन से होता है, वो लॉन्ग फॉर्म में भी हो सकता है, वो शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन से होता है, और तीसरा क्वेश्चन डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। इवन कन्वर्जन में भी नेम्ड रिएक्शन आ जाते हैं, रिएजेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमें इन 3 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए बस यही 3 काम भी करना है। नेम्ड रिएक्शन एक जगह लिख करके अपने टेबल के सामने चिपका दिए, बस दिन भर में उसको देख लिया, आ रहे जा रहे उसको एक बार देख लिया, वो तैयार हो जाएगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट, और फिर उसके बाद मेजर और मेन ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, इतना तैयार अगर कर लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। और जैसे हमने बताया कि हर एक चैप्टर इंटरलिंक है, तो अगर पहला चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार हो गया, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गया, तो आगे के चैप्टर बस एज ए रिवीजन चलते रहेंगे। जैसे कि अगर हमने पहले चैप्टर में जो प्रिपरेशन पढ़ा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन देखेंगे कि आने वाले चैप्टर की प्रॉपर्टी में मिल जाएंगे। तो जब हम उस चैप्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर का प्रिपरेशन हमें तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम पहले चैप्टर के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि आने वाले चैप्टर में जो प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। तो अब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हो गए और कॉमन रिएक्शन हमारे तैयार हो जाएंगे। अब इसके बाद जब हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ है अल्कोहल, ईथर, फिनॉल में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जो कि जिनका यूज़ हम प्रिपरेशन में वो रिएक्शन हमें मिल जाएंगे। किसमें? जो हमें प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड, कीटोन की है, वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की है, वो बहुत सारे इसमें रिएक्शन हमें एल्डिहाइड, कीटोन के प्रिपरेशन में मिल जाएंगे। ठीक है। और जो एल्डिहाइड ईथर, अल्कोहल और फिनॉल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रिपरेशन है, वो हम देख लेंगे कहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। अब लोग हमारा दूसरा चैप्टर भी तीसरे चैप्टर से इंटरलिंक हो गया। अब बचा हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हमारे बाकी के सारे चैप्टर में देखेंगे कहीं कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जिक्र मिलता रहेगा, जिसमें से एक डाइजोनियम साल्ट है, उसे वो बार बार हमें मिलेगा। तो कहने का पूरा मतलब यही है हमारा कि हमें ये समझ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें रटना है, कहीं रटना नहीं है, हमें उसे आसान बना देना है। और आसान बनाने के लिए तो हमने बता दिया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही 3 चीज़ें हमें याद रखनी है।
और इन 3 चीज़ों को याद रखने के लिए हमें अपने टेबल के सामने उसे लगा देना है, और जब पढ़ने बैठे एक बार देख लिया, जब पढ़ने बैठे एक बार देख लिया, हाथ से एक बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, सब याद रहता है। जैसे ही पेपर आएगा सारा रिएक्शन सब कुछ याद आ जाएगा। और अगर हम चैप्टर इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं तब तो ऐसे भी तैयारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कहीं हमें रटना नहीं पड़ेगा, कहीं भी रटना नहीं है। अगर हमने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाकई में अच्छे से पढ़ी है तो 12th में हमें कहीं नहीं रखना है, कहीं भी रटना नहीं है। ठीक है, तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स से शुरू करेंगे। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हम लोग एल्केन क्या है सबको पता है। एल्केन फार्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n+2। ठीक है, अब इसमें हम लोग CH4 मीथेन जानते हैं। एकदम बेसिक से हम शुरू करते हैं। सपोज कि हमें कुछ भी नहीं पता है, CH3 इसको इथेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हैलो एल्केन की बात करते हैं। हैलो एल्केन कहाँ से आया होगा? हैलोजन आकर के एल्केन को हैलो बोल दिया, हैलोजन आकर के एल्केन को हैलो बोल दिया तो हैलो एल्केन हो गया। मीन्स एक हाइड्रोजन निकल करके हैलोजन आके जुड़ गया तो वहाँ पे क्या हो गया? हैलो एल्केन। यानी यहाँ पे जो फार्मूला है CnH2n+1 और X। ठीक है, अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके हम कोई हैलोजन लगा देंगे, CH3X हो जाएगा, तो ये हैलो मीथेन हो गया। हैलोजन आकर के हैलो बोल दिया, हैलो मीथेन हो गया। अब ये X क्या हो सकता है? ये X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन भी किसी किसी केस में मिल जाता है। अब इसमें से अगर X की जगह पे क्लोरीन लग गया तो इसे क्या कहेंगे? क्लोरीन ने हेलो बोल दिया तो क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। और अगर ब्रोमीन ने बोल दिया हेलो तो ब्रोमोमीथेन। ठीक है, अगर आयोडीन ने बोल दिया तो क्या होगा? आयोडोमीथेन। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, क्योंकि जो कुछ भी है नाम में है और कहीं नहीं है। अगर हमें नेमिंग आ रही है सब कुछ आसान है। फ्लोरोमीथेन। ठीक है, अब हुआ क्या? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और हैलोजन आकर के लग गया, बन गया हैलो एल्केन, बन गया हैलो एल्केन। कुछ भी ऐसा इसमें बहुत अजूबा नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से हैलो एरेन्स की अगर बात करते हैं तो एरेन्स क्या है? एरेन्स, एरेन्स हमारा जो है बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ठीक है, एरीन हमारा क्या है? बेंजीन है। और ये बेंजीन जो है C6H6 है, यानी इस रिंग के ऊपर यहाँ पे 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं।
6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये हमारी बेंजीन है जिसको हम एरिन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर हैलोजन आके जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? हैलो एरिन्स। यानी कि यहाँ पे किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके X लग गया। अब ये बन गया हमारा हैलो एरिन्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन के साथ अगर क्लोरीन आके लग गया, इसको हम गोला बना के भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसके साथ अगर ब्रोमीन लग गया तो इसको हम ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। इसके साथ अगर आयोडीन लग गया तो आयोडो बेंजीन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये इनकी पहचान हो गई। ये अपने पेरेंट से आए हैं और उनके पेरेंट क्या है? हैलो एल्केन के पेरेंट एल्केन है और हैलो एरेन्स के पेरेंट बेंजीन है। सब में एक हाइड्रोजन हटा है और हाइड्रोजन आके जुड़ गया, हैलो बोल दिया, हो गया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज़ से। पहले हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन, शुरुआत हमारी किससे होगी? क्लासिफिकेशन से। फटाफट इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन को देखते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्कीन एंड हैलो एरेन्स, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्कीन एंड हैलो एरेन्स। यहाँ पे दो बेसिस हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ओके। हाइड्रोजन एटम के बेस पर, जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 CH2 X है तो यहाँ पे ये मोनो हैलो एल्केन हो जाएगा, हैलो इथेन बोल सकते हैं, मोनो हैलो इथेन। यहाँ पे हैलोजन कितना लगा है? 1 लगा है, ठीक है। या हम जनरल नेमिंग से भी कर सकते हैं, इसको मोनो हैलो एल्केन भी बोल सकते हैं। अब इसको हम मोनो हैलो एल्केन। अगर यहाँ पे 2 लग गए तो जनरली इसको कहेंगे डाई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। अगर 3 लगे हुए हैं, CH2X CHX और CH2X,
ठीक है, तो इसको हम ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे। अभी एकदम जनरल नेमिंग है ये, क्लासिफिकेशन को बताने के लिए। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग के साथ एक X लगा है तो ये मोनो हेलो एरिन्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा है तो डाई हेलो एरिन्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 3 लगा हुआ है X X X तो इसको हम ट्राई हेलो एरिन्स बोल सकते हैं। 4 अगर लगा हुआ है इसको हम टेट्रा हेलो एरिन्स बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन। बहुत आसान है अगर हम शुरुआत से पढ़ते चलते हैं तो। अगर हम शुरुआत से पढ़ते चलते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसी नंबर के बेस पे एक जो है कि टर्म होता है जिम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड। इसी नंबर के बेस पे वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ जाता, बहुत छोटी चीज़ है और स्किप कर जाती है। उसमें उसको याद करने का एक ट्रिक है, दोनों की स्ट्रक्चर साथ में रखें और एक को याद रखें, दूसरा अपने आप याद रहेगा। देखते हैं क्या है, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको यहाँ पे। अब सपोज कि कोई कंपाउंड है, X यहाँ लगा है, X यहाँ लगा है, ये CH3 है। एक कंडीशन ये है कि एक हैलोजन यहाँ लगा है और एक हैलोजन यहाँ लगा है, ठीक है। ये 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जाके जम गए, तो इसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेमिनल उसको बोलते हैं, जेमिनल, उसमें से हमने ले लिया जेम डाई हैलाइड। लेकिन अगर 2 डिफरेंट कार्बन पे लगे हैं, याद रखना है 2 डिफरेंट कार्बन पे लगे हैं, तो इसको हम विसिनल यानी विक डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। ओके, क्या ध्यान रखना है, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जमे हुए हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जमे हुए हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे, अगल बगल कार्बन पे हैलोजन हैं तो उसको हम विक डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब इनके अगर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नेमिंग भी आ जाती है, नोट कर लीजिए पहले इसको। इनकी अगर नेमिंग करते हैं, सपोज कि यहाँ पे हमारे पास CH2 CH, यहाँ पे Cl लगाया और यहाँ Cl लगाया, यहाँ पे CH। पहचान देखिए कैसे पहचान पाएंगे, किस तरह से अगर नाम दिया हो, नाम लिखा हो
तो इधर से गिनती करें या इधर से गिनती करें, हम लोगों ने 11th में नेमिंग पढ़ा है, क्योंकि दोनों साइड से ये बराबर है तो लिखेंगे 2 डाइक्लोरो डी यहाँ बड़ा बना सकते हैं, डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसकी पहचान है कि एक ही कार्बन पे लिखा रहेगा तो यह नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे एक Cl लगा है और एक Cl यहाँ लगा है, तो अब इसको क्या बोलेंगे गिनती, तो यहाँ से करेंगे 1 2, तो लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब कहीं भी ये क्वेश्चन में है और पूछ दे कि इनमें से कौन जेम डाई हैलाइड है, इनमें से कौन जेम डाई हैलाइड है, क्वेश्चन पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है। या तो स्ट्रक्चर दे दिया पूछ दिया, या तो IPSC नेम दे दिया पूछ दिया, 4 ऑप्शन बना दिए, ऑप्शन ही तो बनाना है, 4 ऑप्शन बना दिए। तो उस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमसे क्वेश्चन एक टॉपिक पे कितनी तरह से पूछ सकता है, उस पॉसिबिलिटी को जान लेना है। कभी नाम दे दिया, IPSC नेम दे दिया पूछ दिया, इसमें से कौन जेम डाई हैलाइड या कौन विक डाई हैलाइड है। तो जेम के केस में याद रखना है कि अगर सेम पोजीशन 2 बार आती है, जैसे 2 2 1 1 3 3, तो वो हमारा जेम कंडीशन है। और अगर 1 2 आता है, 2 3 आता है, 3 4 आता है, तो हमारा क्या हो सकता है, विक डाई हैलाइड हो सकता है। वो क्या हो सकता है, विक डाई हैलाइड, है ना, बहुत सिंपल है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की जरूरत, चीज़ें बहुत छोटी दिखती है, लेकिन अब जब क्वेश्चन आता है तो पहले से दिमाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डरा है कि अरे रटना नहीं, समझना है, समझ के तैयार करना है, तो वो चीज़ हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब हमने आपको क्लू दे दिया कि अगर एक ही सेम पोजीशन दिया है, जैसे 2 2 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, 4 4 दिया हुआ है, तो वो जेम को बताएगा। लेकिन 2 डिफरेंट एडजेसेंट पोजीशन दी है, 1 2 2 3 3 4, ये क्या है, ये हमारी वीक कंडीशन है, इसको हम वीक डाई हैलाइड बोल सकते हैं। आई बात समझे। तो कोई भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन based on हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो हम लोग तो हाइब्रिडाइजेशन सभी लोग जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हमें जानना है, और sp2 और sp, इन्हीं 3 पे सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं 3 पे क्या है, सारे क्वेश्चन हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से किस तरह से इसको हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि इसमें पहला है फर्स्ट हैलोजन अटैच विथ या हैलोजन लिंक्ड
with sp3 hybrid कार्बन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि हैलोजन एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे RCHH, अगर एक R ग्रुप लगा है तो इसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं। यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी हैलोएल्केन इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लगा है R ग्रुप। अगर यहाँ पे 2 R ग्रुप लग गए और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज अभी भी है क्योंकि 4 बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसको हम सेकेंडरी 2 डिग्री हैलोएल्केन बोल सकते हैं, अल्केन। और अगर यहाँ पे 3 लगे हुए हैं हैलोजन के साथ, इसको 3 डिग्री टर्शियरी हैलोएल्केन बोल सकते हैं, हैलोअल्केन। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल है। हैलोजन कहाँ जुड़ा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। और एक अगर अल्केन ग्रुप लगा है R ग्रुप क्या हो सकता है? CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो एक तो प्राइमरी, 2 तो सेकेंडरी और 3 तो टर्शियरी। बहुत आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अच्छे से हम लोग तैयार कर सकते हैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।